مہنگائی کے ڈر سے عوام کو ایک اور جھٹکا کہ الیکٹرک نے بجلی مہنگی کر دی، فی یونٹ پر ₹3.37 اضافہ، اطلاق 301 یونٹ سے ہوگا، ₹17.60 فی یونٹ کا بل بنے گا، 700 یونٹ پر ₹20.70 فی یونٹ چارج ہوں گے۔ ننھی فرشتہ سے زیادتی نہیں ہوئی، بچی نے ملزمان کو شناخت کر لیا تھا، زیادتی سے بچنے کے لیے مزاحمت کی تھی، خنجر کے وار سے موت ہوئی، پولیس کو مالک مکان کے بیٹے اور ہمسائے پر شک، ڈی این اے رپورٹ کا انتظار۔ اسلام آباد میں جیالوں کی دھلائی، پٹائی اور رلائی، پابندی کے باوجود بلاول کے ساتھ نیب آفس جانے کی کوشش، پولیس نے آڑے ہاتھوں لے لیا، نیب کا کالا قانون، واٹر کینن سے نہیں دھویا جا سکتا، جیالے پھانسی سے نہیں ڈرتے، پانی سے کیا ڈریں گے، آصفہ بھٹو کا ٹویٹ۔ سلیکٹڈ حکومت منظور نہیں، بلاول کا جلال، عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا اعلان، عمران کا رویہ مشرف والا ہے، علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ، رہا کارکنوں سے کہا جمہوریت کے لیے کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جعلی اکاؤنٹس کیس میں پی پی چیئرمین کو نیب نے 32 سوالوں کا پرچہ تھما دیا۔ اسلام آباد میں جو ہوا ٹھیک ہوا، کسی کو عدالتوں کے سامنے احتجاج نہیں کرنے دیں گے، صداقت عباسی کی پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو، حکومت نے احتجاج پر کنٹینر اور کھانا دینے کا کہا تھا، یہاں پولیس کی لاٹھیاں اور چھترول نظر آئی، نفیسہ شاہ کا طنز۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف ریفرنس، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا، ریفرنس دائر کیا گیا ہے تو کاپی فراہم کی جائے، اس طرح کی لیکس کردار کشی کا باعث ہوتی ہیں، خط کا متن۔ افسوس ایک جج صدر مملکت کو خط لکھنے پر مجبور ہو گیا، یہ ملکی نظام برباد کرنے کی سازش ہے، لیگی رہنما ملک احمد کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، پیپلز پارٹی کے رہنما بہرامند تنگی نے کہا عدلیہ پر وار کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو سرکاری نوکری سے محروم رکھا گیا، جعلی ڈومیسائل پر ملازمتیں دی گئیں، وفد کے شکوے، تحقیقات کرانے کا مطالبہ، شہر قائد کے ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ کراچی میں آئس نشے کی لعنت، خاتون کونسلر بھی ملوث نکلی، بہادرآباد پولیس کا ایکشن، 15 افراد گرفتار، تعلیمی اداروں میں نشہ فروخت کرتے تھے، ماما بشیر آئس کا سب سے بڑا ڈیلر، شپنگ کمپنی کی آڑ میں کاروبار کرتا ہے، لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے کا بھی انکشاف۔ ملائیشیا میں پھنسے 320 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے، پی آئی اے کے خصوصی طیارے کے ذریعے لایا گیا، اسلام آباد ایئرپورٹ پر نعرے، وزارت خارجہ نے اس حوالے سے خصوصی سیل قائم کیا تھا۔ بھارتی فوج کی پھر سرحدی خلاف ورزی، راولاکوٹ سیکٹر پر فائرنگ کر دی، خاتون صفیہ بی بی زخمی ہو گئی، اسپتال منتقل کر دیا گیا، ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ رتو ڈیروں میں ایچ آئی وی کے مزید 5 کیسز سامنے آ گئے، تعداد 712 ہو گئی، 583 بچے شامل، اسکریننگ کیمپ میں آج 341 افراد کی اسکریننگ کی گئی۔ بیوی پر ایڈز کا شک، شکارپور میں شوہر نے گلا دبا کر بیوی کو قتل کر دیا، ظالم نے لاش درخت سے لٹکا دی، بھائی بھی قتل میں ملوث، پولیس کا ایکشن، ملزم کو گرفتار کر دیا، دیور فرار ہو گیا، تلاش جاری، خاتون زرینہ 4 بچوں کی ماں تھی۔ ماہ سیام میں کراچی میں لٹیروں کا راج، بہادرآباد میں شہری کو گھر کی دہلیز پر لوٹ لیا گیا، سیکیورٹی گارڈ بھی منہ دیکھتا رہ گیا، آج نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ پاکستانی کو پہما محمد علی ستپارہ کا اعزاز، نیپال میں مکالو چوٹی پر کر لی، 8485 میٹر بلند مکالو دنیا کی 5ویں اونچی چوٹی ہے، ستپارہ 7 چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے، پاک فوج نے معاونت کی تھی۔ بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا،
बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। आज न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बारान रहमत जारी। सहर और इफ्तार में मेज़बानों की दिल नशीन गुफ्तगू, दीनी मौज़ूआत पर उलमाए कराम की वजाहत, नशरियात आवाम के दिल में घर कर गई। और मुल्क भर में ईद की तैयारियां तेज, कराची के बाजारों में रश लग गया। लाहौर के इछरा बाजार में तिल धरने की जगह नहीं। हैदराबाद में कांच की चूड़ियों की मांग, बच्चों ने भी वालिदैन को जिद की, बेड़ियों में जकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अहम खबर यहां पर शामिल करेंगे। मुल्क की मशहूर मॉडल और अदाकारा सादिया इमाम भी मुसल्ला हो गईं। जी हां, उन्होंने कोयटा से असलहे का लाइसेंस बनवा लिया। सादिया इमाम को एक बासर शख्सियत ने असलहे का लाइसेंस बनवा कर दिया है। सादिया इमाम का शनाख्ती कार्ड कराची का है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल अहमद से। जी सुहेल अहमद, क्या तफसीलात हैं सिलसिले में आपके पास? जी बिल्कुल, आज डिप्टी कमिश्नर कोयटा के दफ्तर से उनका लाइसेंस जारी हुआ। सादिया इमाम का ये लाइसेंस जारी हुआ, जो बलूचिस्तान के एक इंतहाई बाअसर शख्सियत ने उनका ये लाइसेंस बनवाया है। ज़राए के मुताबिक उनका ताल्लुक कराची से है और उनका शनाख्ती कार्ड भी कराची से, जबकि उनका असले का लाइसेंस जो है वो कोयटा से डिप्टी कमिश्नर ने बनवा कर दिया। जी बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद। तफसीलात बता रहे हैं कि सादिया इमाम का ताल्लुक कराची से, लेकिन उनका लाइसेंस कोयटा से बनाया गया है। अभी आपको बताएं, मलेशिया में फंसे 322 पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचा दिया गया है। PIA की बोइंग 777 तैयारा पाकिस्तानियों को लेकर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा, ताहम तैयारा 45 मिनट ताखीर से आया। इस्लामाबाद पहुंचने वाले पाकिस्तानियों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल हुआ और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान मौजूद थे। पाकिस्तानी शहरी भारत से खराब हालात के बाइस फरवरी से मलेशिया में फंसे हुए थे। ये थी अब तक की अहम खबरें और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल बिहाइंड द विकेट आज के साथ। महंगाई के डसे अवाम को एक और झटका कि इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी कर दी। फी यूनिट पर 3 रुपए 37 पैसे इजाफा। इतलाक 301 यूनिट से होगा। 17 रुपए 60 पैसे फी यूनिट का बिल बनेगा। 700 यूनिट पर 20 रुपए 70 पैसे फी यूनिट चार्ज होंगे। नन्ही फरिश्ता से ज्यादती नहीं हुई, बच्ची ने मुल्जिमान को शिनाख्त कर लिया था। ज्यादती से बचने के लिए मुजाहिमत की थी। खंजर के वार से मौत हुई। पुलिस को मालिक मकान के बेटे और हमसाए पर शक। DNA रिपोर्ट का इंतजार। इस्लामाबाद में जियालों की धुलाई, पिटाई और रुलाई। पाबंदी के बावजूद बिलावल के साथ नैब ऑफिस जाने की कोशिश, पुलिस ने आड़े हाथों ले लिया। नैब का काला कानून, वाटर कैनन से नहीं धोया जा सकता। जियाले फांसी से नहीं डरते, पानी से क्या डरेंगे, आसफा भुट्टो का ट्वीट। सिलेक्टेड हुकूमत मंजूर नहीं, बिलावल का जलाल। ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान, इमरान का रवैया मुशर्रफ वाला है। अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा, रिहा कारकुनों से कहा जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। जाली अकाउंट्स केस में PP चेयरमैन को नैब ने 32 सवालों का पर्चा थमा दिया। इस्लामाबाद में जो हुआ ठीक हुआ, किसी को अदालतों के सामने एहतजाज नहीं करने देंगे। सदाकत अब्बासी की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, हुकूमत ने एहतजाज पर कंटेनर और खाना देने का कहा था। यहाँ पुलिस की लाठियां और छतरौल नजर आई। नफीसा शाह का तंज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ रेफरेंस, जस्टिस काजी फायज ईसा ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। रेफरेंस दायर किया गया है तो कॉपी फराहम की जाए। इस तरह की लीक्स किरदार कुशी का बाइस होती हैं। खत का मतन। अफसोस, एक जज सदर मुमलिकत को खत लिखने पर मजबूर हो गया। ये मुल्की निज़ाम बर्बाद करने की साजिश है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बहरामंद तंगी ने कहा अदलिया पर वार किया गया है। MQM के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात, कराची और हैदराबाद के लोगों को सरकारी नौकरी से महरूम रखा गया। जाली डोमिसाइल पर मुलाजमतें दी गईं, वफ्द के शिकवे।
तहकीकात कराने का मुतालबा। शहर कायद के तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। कराची में आइस नशे की लानत, खातून काउंसलर भी मुलव्विस निकली। बहादुराबाद पुलिस का एक्शन, 15 अफराद गिरफ्तार। तालीमी इदारों में नशा फरोख्त करते थे। मामा बशीर आइस का सबसे बड़ा डीलर। शिपिंग कंपनी की आड़ में कारोबार करता है। लड़कियों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का भी इंकिशाफ। मलेशिया में फंसे 320 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। PIA के खुसूसी तैयारे के जरिए लाया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नारे। वजारत खारजा ने इस हवाले से खुसूसी सेल कायम किया था। भारतीय फौज की फिर सरहदी खिलाफ वर्जी। रावलाकोट सेक्टर पर फायरिंग कर दी। खातून सफिया बीबी जख्मी हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। रत्तो डेरों में HIV के मजीद 5 केसेस सामने आ गए। तादाद 712 हो गई। 583 बच्चे शामिल। स्क्रीनिंग कैंप में आज 341 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। बीवी पर एड्स का शक। शिकारपुर में शौहर ने गला दबाकर बीवी को कत्ल कर दिया। जालिम ने लाश दरख्त से लटका दी। भाई भी कत्ल में मुलव्विस। पुलिस का एक्शन, मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। देवर फरार हो गया, तलाश जारी। खातून जरीना 4 बच्चों की मां थी। माह सयाम में कराची में लुटेरों का राज। बहादुराबाद में शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। सिक्योरिटी गार्ड भी मुंह देखता रह गया। आज न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। पाकिस्तानी को पहमा मोहम्मद अली सतपारा का एजाज। नेपाल में मकालू चोटी पर कर ली। 8485 मीटर बुलंद मकालू दुनिया की 5वीं ऊंची चोटी है। सतपारा 7 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाक फौज ने माउनत की थी। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। आज न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बारान रहमत जारी। सहर और इफ्तार में मेज़बानों की दिल नशीन गुफ्तगू। दीनी मौज़ूआत पर उलमाए कराम की वजाहत। नशरियात अवाम के दिल में घर कर गई। और मुल्क भर में ईद की तैयारियां तेज। कराची के बाजारों में रश लग गया। लाहौर के इचरा बाजार में तिल धरने की जगह नहीं। हैदराबाद में कांच की चूड़ियों की मांग। बच्चों ने भी वालिदैन को जिद की, बेड़ियों में जकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अहम खबर यहां पर शामिल करेंगे। मुल्क की मशहूर मॉडल और अदाकारा सादिया इमाम भी मुसल्ला हो गईं। जी हां, उन्होंने कोयटा से असलहे का लाइसेंस बनवा लिया। सादिया इमाम को एक बाअसर शख्सियत ने असलहे का लाइसेंस बनवा कर दिया है। सादिया इमाम का शनाख्ती कार्ड कराची का है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल अहमद से। जी सुहेल अहमद, क्या तफसीलात हैं सिलसिले में आपके पास? जी बिल्कुल, आज डिप्टी कमिश्नर कोयटा के दफ्तर से उनका लाइसेंस जारी हुआ। सादिया इमाम का ये लाइसेंस जारी हुआ, जो बलूचिस्तान के एक इंतहाई बाअसर शख्सियत ने उनका ये लाइसेंस बनवाया है। ज़राए के मुताबिक उनका ताल्लुक कराची से है और उनका शनाख्ती कार्ड भी कराची से, जबकि उनका असले का लाइसेंस जो है वो कोयटा से डिप्टी कमिश्नर ने बनवा कर दिया। जी बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद। तफसीलात बता रहे हैं कि सादिया इमाम का ताल्लुक कराची से, लेकिन उनका लाइसेंस कोयटा से बनाया गया है। अभी आपको बताएं, मलेशिया में फंसे 322 पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचा दिया गया है। PIA की बोइंग 777 तैयारा पाकिस्तानियों को लेकर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। ताहम तैयारा 45 मिनट ताखीर से आया। इस्लामाबाद पहुंचने वाले पाकिस्तानियों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल हुआ और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान मौजूद थे। पाकिस्तानी शहरी भारत से खराब हालात के बाइस फरवरी से मलेशिया में फंसे हुए थे। ये थी अब तक की अहम खबरें और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल बिहाइंड द विकेट आज के साथ।